Hello students, Jainacharya Sri Yajramarji Vidyadham. Welcome back to online study, subject environment, standard 3rd, chapter 20, tell how many, part 1. So students, our home is our first school. People living in our house are our family members. We learn many things from our family. The culture of living together is included in a family. A child learned its first lesson of socialization from a family. Respecting elders and the correct way of the behaving with our peer is learned in a family. Children benefit directly from the love and attention they get from their grandparents, parents, uncles, aunts, elder, uh, cousins, etc. when they live in a joint family. Thus, a family is the first school for a child proper molding. यहाँ पे जो कोई बच्चा जन्म लेता है तो पहले से सब कुछ सीख के नहीं आता है, राइट। तो क्या कर यहाँ पे जिस घर में वो जन्म लेता है उस घर के रीति रिवाज, नीति नियम, वो सब अपने जो फैमिली मेम्बर्स है उसके पास से वो सीखता है। पहली स्कूल जो है वो हमारा घर है, हमारी फैमिली है। वो हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करना, ये अलग कैसे बिहेव करना, फिर सच्चा रास्ता के ऐसी बहुत सारी थिंग्स है वो हमें सिखा के हम हमारे जो आजू बाजू समाज है उसमें हम रह सके, उसके साथ व्यवहार कर सके। तो ये हमको ये हमारी जो फैमिली है वो हमें सिखाता है। एक साथ रहना, मिलजुल के रहना, एक दूसरे की हेल्प करना, शेयरिंग करना, ये सब हमको हमारी फैमिली सिखाती है। तो आज हम ऐसा ही एक लेसन पढ़ने जा रहे हैं। नाउ वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 20, टेल हाउ मेनी। तो बच्चों यहाँ पे टेल हाउ मेनी जो लेसन है उसमें क्या है, उसमें हमें न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली के बारे में आज हम सीखेंगे। तो हमको सबको पता है, हम इतना तो समझ ही सकते हैं कि जॉइंट फैमिली किसे कहते हैं। तो जिसमें जो बच्चा है वो, फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंटी और कजिन्स जो एक साथ रहते हैं उसको जॉइंट फैमिली कहते हैं, राइट। और न्यूक्लियर फैमिली तो उसमें सिर्फ चिल्ड्रन और उसके पेरेंट्स ही रहते हो, उसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। टेल हाउ मेनी कम्स, लेट अस प्ले अ गेम टुगेदर। चलो आज हम यहाँ पे एक गेम खेले। यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस गेम। ऑल द चिल्ड्रन स्टैंड इन अ सर्कल, एक सर्कल में खड़े रह जाना है। लेट वन चाइल्ड स्टैंड द सेंटर एंड प्ले अ टोन। यहाँ पे एक टोन प्ले करनी है। Everyone must run in a circle as long as the music play. जब तक म्यूजिक चालू है तब तक उसको सर्कल में घूमते रहना है। The child who is playing the music will suddenly stop it and call out a number like 5, 4 or 2 loudly. यहाँ पे ये बहुत अच्छी गेम है। बहुत जो ग्रुप में हो तो बहुत मज़ा आता है इसमें खेलने में, कि सर्कल में खड़े रहना है, फिर म्यूज़िक बजेगा, अचानक से जो जो राउंड में अंदर मिडल में जो खड़ा रह बच्चा है वो प्ले जो म्यूज़िक है उसको स्टॉप कर देगा और कोई भी एक
अंक फिगर बोलेगा तो फिर वो आउट हो जाएगा। चिल्ड्रन हैव टू फॉर्म ग्रुप अकॉर्डिंग टू द number called out. The children who cannot join any group will have to leave the game. Continue to play this game till only 2 children are left in the circle. सिर्फ 2 ही चिल्ड्रन बचेंगे. Think and tell. Come, let us talk about this game. First question है, what did you when you are asked join a group of the required number? Why? When I was asked to join a group of the required number, I felt very excited and quickly joined my friends to form the correct group. Next question is, how did you feel if you could not join any group? When I could not join any group, I felt very sad. I felt as if I had gone away from everyone because I was out of the game. Third question is, why could you not join any group? When we had to make a group with a specific number of members, I called my friend to make the group, but they had already made the required group, so I was left alone and could not join any group, nor could I make my own group. In school, whom do you like to be more with? Why? In school, I like to be more with friends Bina because she is my neighbor. We go to school together and sit beside each other in class. The next question, how would you feel if you always had to be alone? If I always had to be alone, I would feel very sad. I would feel very lonely. All of us, next page, all of us prefer to live with people than to live alone. We always live in group. Let's see one such group, Devendra, Manjula and their children दिव्या एंड मानव. यहाँ पे फैमिली जो आपको दिखाई दे रही है ये देवेंद्र है, उसकी वाइफ मंजुला, फिर उसकी बेटी दिव्या एंड बेटा मानव. हाउ आर दिस पीपल रिलेटेड टू ईच अदर? क्या रिलेशन होगा? तो पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ये न्यूक्लियर फैमिली है. द पीपल in the picture belong to one family. We often see pictures or photographs of such families. Where do we see such a family? Are all families similar to this one? Let us read about a few family. हम ऐसे ही थोड़ी और फैमिली के बारे में जाने. तो यहाँ पे नीचे सीता के फैमिली के बारे में हम बात करें तो सीता लिव्स इन हर ancestral house in a city named Surat. Her dada dadi, younger kaka and Foy live on the ground floor. On portion of the first floor, Sita lives with her father, mother and younger sister Geeta. In the other portion live her elder Kaka and his 3 children. Her elder Kaki died just a few months ago. सीता के काकी जो है वो थोड़े समय से पहले ही एक्सपायर हो गए थे. Her elder Kaka and the new Kaki live in one of the rooms on the terrace. They are newly married.
बिफोर डिनर सीताज मदर टीचेस ऑल द चिल्ड्रन। डिनर से पहले क्या करते हैं, ये एक बच्चों जॉइंट फैमिली की बात है कि सब बच्चे एक साथ में पढ़ते हैं, जो सीता की मम्मी सबको पढ़ाती है। फूड फॉर द होल फैमिली इज कुक्ड इन अ सेम किचन। एक ही किचन में सबके लिए खाना बनता है। On the ground floor, they all make special effort to be together at dinner time. Nowadays, Elder Kaki's younger daughter sleeps with Sita's mother at night. जो एल्डर काकी थी, उसकी जो यंगर बेटी थी, वो हमेशा सीता की मम्मी के साथ ही सोती थी। इन द मॉर्निंग सीता हेल्प्स हर गेट रेडी फॉर स्कूल। और सीता जो है वो अपनी छोटी बहन को स्कूल के लिए रेडी करती थी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हु ऑल आर देयर इन सीताज फैमिली। तो वो अब आप इसके आंसर दे सकते हो खुद से। हाउ इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पीपल इन द फैमिली। तो वो भी हमें पता है कि क्या सीता के काका या सीता के दादाजी थे, सीता के दादी, सीता के एल्डर काका, राइट। तो एक दूसरे के साथ उसके क्या संबंध है वो भी हम आगे पढ़ चुके हैं कि पापा को दादा बोलते हैं, मम्मी के पापा को नानी बोलते हैं, ये सब रिलेशन हम जानते हैं, राइट। तो यहाँ पे और एक फैमिली देखे हम, तारा। तारा लिव्स with her mother and नाना in राजकोट। यहाँ पे उसकी मदर तारा जो है उसकी मम्मी और उसकी मम्मी और नाना के साथ तारा राजकोट में रहती थी। हर मदर मीनाक्षी इज नॉट मैरिड। वो मैरिड नहीं थी। शी वॉज एडॉप्टेड तारा। उसने तारा ने एडॉप्ट किया था। मीनाक्षी गोज टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न इन द इवनिंग। व्हेन तारा रिटर्न्स फ्रॉम द स्कूल हर नाना टेक्स केयर ऑफ हर। तारा तो स्कूल जाती थी और उसकी मम्मी शाम तक ऑफिस जाती थी, तो उसकी केयर कौन करता था, उसके नाना करते थे। He is the one who feeds her, helps her to do homework and also plays with her. उसके साथ खेलते थे, उसके साथ क्या करते थे नाना जी, उसके साथ गेम खेलते थे, उसके होमवर्क में उसको हेल्प करते थे, उसको खाने पीने की चीज़ देते थे, राइट। तो ये कौन हुए, मम्मी के पापा, मतलब नाना। During vacation, all three of them go to far off places and enjoy themselves. तीनों कहाँ जाते थे, घूमने जाते थे और खूब एंजॉय करते थे। At the time, ताराज मासी मासा मतलब मम्मी की बहन और बहन के पति मासा, and their children also come to their house. At such times, they play together for long hours and also chit chat. राइट। तो यहाँ पे हमने तारा की फैमिली के बारे में भी सीखा। जो सीता थी वो जॉइंट फैमिली में रहती थी, तारा थी वो भी नाना के साथ राजकोट में रहती थी। थिंक एंड टेल। हु टेक्स केयर ऑफ तारा। तारा की देखभाल कौन करता था, तो उसके नाना थे, वो उसकी देखभाल कैसे करते थे वो भी हमने आगे सीखा। What are the things the family members do together? तो उसकी डिस्कस भी हम कर चुके हैं आगे। फिर नेक्स्ट फैमिली है रेहाना एंड हबीब की।
Rihanna and Habib live in a city. Both are employed. Habib is a clerk in a government office and Rihanna teaches in a school. Habib's papa is retired and live with them. वो रिटायर्ड थे और वो उसके साथ रहते थे. In the evening, the three of them sit together and watch television. हर शाम को वो तीनों एक साथ बैठते थे और एक साथ टीवी देखते थे. He enjoys the discussion as well. On holidays, two neighbors' children come to their house and have fun. Everybody enjoys together. They play games, go out and at time go for plays and movies. ये तीनों क्या करते थे? बाजू वाले बच्चे के साथ भी खेलते थे, बाहर जाते थे घूमने और पिक्चर देखने भी जाते थे और एक साथ वो टीवी भी देखते थे. तो बच्चों यहाँ हम ये लेसन नंबर 20 हम आगे दूसरे पार्ट में सीखेंगे. इतना आपको समझ में आ गया होगा. तब तक के लिए थैंक यू.